Hello friends, today I will discuss about that cell immune response and humoral response. Okay, तो आज हम बात करने वाले हैं कि सेल मेडिएटेड सेल से यानी कि टी सेल्स और बी सेल्स से कैसे इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और एंटीबॉडी से कैसे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है. ओके, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दैट cell immune response and humoral response, we are talking about that. First of all, the concepts of that various types of immune cells. Okay, we are recalling that the all types of immune cells first of all, okay, that are characteristic also, and how can they produce, it is a one type of the basic concepts. Okay, तो स्टार्ट करते हैं हम. ओके, तो हमें पता है कि बोन मेरो में से ही सभी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स दैट आर प्रोड्यूस, एंड दैट हिमेटोपोएटिक स्टेम cells the produce first of all, you can see that in the myeloid progenitor cells and lymphoid progenitor cells. Okay, here one is that the lymphoid progenitor cells, it is carried out that lymphatic system. Okay, and it is also helpful for that immune system. The lymphoid progenitor cells that produce that various types of cells, but that most population is that, and also called as a heavy population, are that B cell progenitor and the T cell progenitor. Okay, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, we are already discussing that B cells progenitor and T cell progenitor. Here one is that B cell progenitor that produce that B cells. Okay, and the T cell progenitor that produce that cytotoxic T cells and helper T cells. Okay, we know about the T cells types. Okay, the T helper cells, we can see that here one is that, मैं आपको बताती हूँ. See, here one is that you can see that first of all, this one, focus on this one. This is called that T cell receptors. Okay, this is called that T cell receptors. Okay, then after आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर वाला, जो ब्लू कलर जो पोर्शन है वो बताता है कि T helper cells they contains that cell membrane molecules. It is called that CD4 protein. Okay, the CD4 proteins, the full form is that cluster differentiation protein, and it is also called as a recognition of the protein to that T helper cells. यानी कि अगर T helper cells की मेम्ब्रेन पर CD4 प्रोटीन होगा तो ही हम उसे क्या रिकॉग्नाइज करेंगे कि यस ये है हेल्पर सेल्स. ओके, अगर अब जब हम बात कर रहे हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल में क्या होता है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कंटेनिंग दैट CD8 प्रोटीन. ओके, यानी कि क्लस्टर डिफरेंशिएशन प्रोटीन इज दैट 8 टाइप ऑफ प्रोटीन. ओके, और ऑल्सो हैविंग दैट टी सेल रिसेप्टर्स. ओके, तो दोनों के दोनों सेल्स जो है वो हम रिकॉग्नाइज कैसे कर पाते हैं, तो उसके मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन से हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हेल्पर सेल्स है और ये साइटोटॉक्सिक सेल्स है. ओके, देन आफ्टर वी आर फोकसिंग ऑन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, the lymphoid cells also produce that natural killer cells. Okay, you can see that the difference between that T cells and natural killer cells. Okay, आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि natural killer cells how can that differentiate to that T cells and natural killer cells. Okay, कैसे ये differentiate होते हैं, तो you can see that helper T cells containing that T cell receptors and CD8 protein, CD4 protein. Okay, but the natural killer cells cannot having that this types of cell receptors, यानी कि उसके पास कोई भी cell receptors उसके मेम्ब्रेन पर होता नहीं है. ओके, तो नेचुरल किलर सेल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये सेल्फ मॉलिक्यूल है या नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है. ओके, means that natural killer cells cannot capable to that identify the self molecules and non self molecules. Okay, then after we are focusing on that natural killer cells की बात हो गई.
कि नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, तो नेचुरल किलर सेल्स किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और आफ्टर ऑल वो क्या करते हैं, तो जिस सेल के भी साथ, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि सेल है, ओके, और इसके साथ एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, ओके, इस टाइप की एंटीबॉडी जुड़ी है। तो इस टाइप की एंटीबॉडी को वो क्या करता है, तो रिकॉग्नाइज करता है, उससे टारगेट बनाता है, और इस टारगेट सेल्स को क्या करता है, तो टारगेट सेल्स में परफोरिन प्रोटीन और ऑल्सो टाइप्स ऑफ ग्रे एंजाइम्स का क्या करता है, वो सिक्रीशन करता है, और इस टारगेट सेल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ओके। दिस इज अ फंक्शन ऑफ दैट natural killer cells, okay. You can idea about that what are difference between that helper T cells or natural killer cells, or also called as other types of lymphoid cells, वो कैसे differentiate करते हैं, okay. Then after we are focusing on that B cells, which is very important cells, okay, our immune system. The B cells produce that first of all and differentiate into that plasma cells, and the plasma cells we know about that it is a antibody secreting factory, okay. They produce the various types of antibodies, and it is also part in that antibody mediated immunity, okay. And T cells or helper T cells or cytotoxic T cells, they part in that cell mediated immunity, okay. We are discussing on that lymphoid cells. The last one is that dendritic cells, okay. The dendritic cells, it is a one type of that एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं, ओके। जो क्या करता है, तो एंटीजन को पहचानता है, और साथ ही साथ वो अगर उसके पास एंटीजन जो है वो उसके पास आ गया है, तो उसे क्या करता है, प्रेजेंट करता है, दूसरे सेल्स को बताता है कि ये हमारे शरीर में आ चुका है, तो चलो स्टार्ट करो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करना, ओके। इट इज़ कॉल्ड दैट डेंड्राइटिक सेल्स फंक्शन, okay. Then after we see that myeloid progenitor cells. The myeloid progenitor cells, they produce that various types of white blood cells, okay. You can see that granulocytic cells that produce first of all the granulocytic progenitor that produce first of all, यहाँ पर आपको दिखा हुआ है कि ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर है, यानी कि ये मोनोसाइट है, और ऑल्सो कोल्ड एज अ मैक्रोफाज बनाने में ये बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है। सी दैट दिस इज़ वन, ओके। इसमें से मैक्रोफेजिस टाइप्स के सेल्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रोफिल्स बना है, देन आफ्टर क्या बना है, मोनोसाइट एंड मैक्रोफाज, ओके। सी दैट, ओके। मोनोसाइट और मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स दोनों ही क्या है, मैक्रोफाजिस है, ओके। Then after eosinophils progenitor, the eosinophils progenitor, they produce that eosinophils, and it helps to that destroy that all the types of cells, okay. जो भी एंटीजेंस आया है तो उसे वो क्या करता है, उसे किल करता है, इस टाइप का फंक्शन है eosinophils का। Then basophils, it is a part in that first of all allergic reaction, okay. Then after myeloid cells also produce that megakaryocyte, okay. We know about that various types of cells are produced into that our body system, because we can that are platelets. It is one type of that soldiers of our body, okay. The megakaryocytes, they produce that platelets, and erythroid progenitor cells, they produce that erythrocytes, okay. तो आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ये आपको बराबर अपने माइंड में रखना है, फिक्स रखना है, ओके, किसका क्या फंक्शन है, ओके। तो अगर आपको इम्यून रिस्पॉन्स में इम्यून सेल्स के बारे में आपको पूछे एग्जाम्स के तौर पर, तो आपको ये ड्रॉ ज़रूर करना है, ओके। देन आफ्टर वी आर फोकसिंग ऑन दैट आवर main topic is that cell immune response and antibody immune response, also called as a humoral response, okay. You can see that first of all
हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एंटीजेंस हैं, ओके। एस तौर पर हम देखें कि वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, फंजाई होती है, ओके। देन फॉरिजिन प्रोटीन्स भी होते हैं, ओके। दिस टाइप्स ऑफ सेल्स अगर हमारे शरीर में एंटर कर लिए तो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स देता है उसमें, तो ये आज हम जानने वाले हैं, ओके। इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सी दिस वन इज़ दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैक्टीरिया को अगर कंसिडर करें तो बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में एंट्री करता है तब हमारा शरीर उसमें कैसा रिस्पॉन्स देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पर सेल इम्यून रिस्पॉन्स की, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि बैक्टीरिया आ गया है। तो बैक्टीरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक है कि इंटरनलाइज्ड एंटीजन डाइजेस्टेड बाय सेल्स, ओके। तो जो बैक्टीरिया है उसकी थोड़ी उसका इंटरनल जो पोर्शन था वो डाइजेशन हुआ है, एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने बताया है कि MHC2 कॉम्प्लेक्स और MHC1 कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है, तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, ओके। हियर वन इज़ दैट क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल, इट इज़ अ वेरियस, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, ओके। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटीजन आता है, जिस टाइप ऑफ एंटीजन है, ओके, मान लो कि ये एंटीजन है। अगर मैं आपको दूसरे कलर से बता रही हूँ, सी हियर वन इज दैट एंटीजन, ओके। ये एंटीजन है, उसे पता चल गया है कि एंटीजन आ गया है, तो एंटीजन से ये MHC2 कॉम्प्लेक्स क्या कर दिएगा, बाइंड हो जाएगा, ओके। और MHC2 कॉम्प्लेक्स से एंटीजन बाइंड हुआ है, उसे कौन रिकॉग्नाइज कर पाता है, तो हमारा हेल्पर टी सेल्स, ओके। तो हेल्पर टी सेल्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि दैट रिकॉग्नाइज दैट क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल, ऑल्सो कॉल्ड एज अ MHC में क्या कब की कर रही हूँ तो आपको पता नहीं होगा कि MHC कॉम्प्लेक्स का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, ओके। दैट MHC फुल फॉर्म इज दैट, प्लीज राइट इट डाउन, मेजर हिस्टो कॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ओके। मैं आपको बता देती हूँ कि मेजर हिस्टो कॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो अगर क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है तो उसे रिकॉग्नाइज कर पाता है हमारा हेल्पर टी सेल्स, एंड अगर क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है तो उसे रिकॉग्नाइज कर पाता है हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ओके। देन आफ्टर हियर वन इज दैट द 2 क्राइटेरिया होता है कि एंटीजन को जानने में, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो एंटीजन क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से क्या हुआ है, बाइंड हुआ है, तो हमारा जो हेल्पर टी सेल्स है उसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ओके। The T cell receptors that recognize the antigen bound to MHC molecules, okay। the recognition हो गया। अब recognition हो गया तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद binding antigen MHC activates the T cells, okay। जो टी सेल्स MHC2 मॉलिक्यूल से बाइंड हुआ था वो अब क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है, ओके। कि हाँ हमारे शरीर में तो एंटीजन आ गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए बी सेल को एक्टिवेट करेगा, लेकिन उससे पहले उसे क्या करना होगा, सिग्नल देना होगा। कैसा सिग्नल देना होगा, दैट प्रोड्यूस और ऑल्सो कोल्ड एज अ सीक्रेट द साइटोकाइंस that can contribute to that activation of the B cells and the cytotoxic T cells and also called as other cells, okay। तो क्या करता है हेल्पर टी सेल्स, तो हेल्पर टी सेल्स साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करता है, और बी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज वेरियस टाइप्स ऑफ सेल को ये सेल सिग्नलिंग देकर बुलाता है कि हाँ हमारे शरीर में एंटीजन आ गया है, ओके। तो अब हमें एंटीबॉडी बनानी क्या करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी, ओके। यू कैन सी दैट वी नो अबाउट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंजेक्ट हो गया है, तो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल ने उसे बाइंड कर दिया है। तो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को कौन जानता है, हेल्पर टी सेल्स, एंड द हेल्पर टी सेल्स दैट एक्टिवेट्स एंड दैट प्रोड्यूस cytokinins and the cytokinins activate that B cells or also called as the cytotoxic T cells, okay। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर
ये साइटोकाइनिन्स है वो बी सेल को एक्टिवेट करा, तो उसे बी सेल्स जो है वो क्या करेंगे, चलो उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर जो स्टार्ट हो जाता है कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, यानी कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है यानी कि सेल इम्यून रिस्पॉन्स है और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, यानी कि दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो साथ में होती है। ओके, ऐसा नहीं होता कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स दिया तो सेल इमीडिएटली इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, दोनों साथ में ही वर्कआउट करते हैं। ओके, हियर वन इज दैट यू कैन सी दैट बी सेल के पास कौन आया है, एंटीजन आ गया है, तो बी सेल्स इंटरेक्ट विथ एंटीजन एंड डिफरेंशिएट इनटू दैट प्लाज्मा सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी सीक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स में क्या होता है वो कन्वर्ट होता है एंड प्रोड्यूस दैट वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। अब तो क्या हो जाएगा बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। ओके, तो you can see that antibody binds to the antigen and facilitates the clearance from the body. Okay, तो क्या करती है वो बॉडी में से बैक्टीरिया को निकालने की पूरी कोशिश कर लेती है हमारी एंटीबॉडी। ओके, तो ये था हमारा ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि हेल्पर टी सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस दैट साइटोकाइनिस एंड साइटोकाइनिस अफेक्ट टू दैट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, यानी कि साइटोकाइनिस बी सेल को ही एक्टिवेट नहीं करेगा, लेकिन हेल्प साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी क्या करता है वो एक्टिवेट करता है। ओके, यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में से कहाँ पर आ गए हैं, फिर से सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में। ओके, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइटोकाइनिन्स का सिक्रीशन हुआ है और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स जो है CTL उसे कहा जाता है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, वो क्या होता है एक्टिवेट होते हैं एंड दैट एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स दैट रिकॉग्नाइज दैट एंटीजन एंड किल द एंटीजेंस। ओके, यहाँ पर क्या होता है, तो जो एंटीजन आएगा ना वो एंटीजन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पर टी सेल के पास नहीं गया और यानी कि MHC2 कॉम्प्लेक्स के पास नहीं गया और क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के पास गया, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उसे रिकॉग्नाइज करेगा और देन आफ्टर दे प्रोड्यूस दैट वेरियस टाइप्स ऑफ साइटोटॉक्सिसिटी एंड दे किल द एंटीजन। ओके, दिस इज होल अबाउट दैट सेल इम्यून रिस्पॉन्स और ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स एंड देन ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ओके, आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे हमने शुरुआत की थी कि एंटीजेंस आए हैं। ओके, देन आफ्टर हमारे शरीर में आते हैं, देन आफ्टर क्लास 1 और क्लास 2 से उसका क्या होता है परिचय होता है एंड देन आफ्टर क्लास 2 मॉलिक्यूल क्या करता है, तो क्लास 2 मॉलिक्यूल से अगर जो एंटीजन बाइंड हुआ है तो हेल्पर टी सेल्स उसे रिकॉग्नाइज करेगा और क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल से बाइंड हुआ है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उसे रिकॉग्नाइज करेगा। देन आफ्टर दैट हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस दैट cytokinins and that activate that B cells also produce that humoral response create करने में ये help करता है cytokinins and that activate that cytotoxic T helper cells, cytotoxic T cells। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आपने देखा कि यहाँ पर टी सेल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, और जहाँ पर बी सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।